آج آپ کو پتا کہ سال کا کون سا دن ہے جی؟ لاسٹ ڈے ہے، 2023 کا آخری دن ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو اس سال کا جو نیا سال آنے والا ہے اس کے لیے جو ہے ہم آج غور کریں گے کہ نیا سال جو ہم اس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ باتیں ہیں جو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. تو پرانے عہد میں سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے نئے سال میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ اب تک یکساں ہے. تو جو پرانا عہد ہے وہ ہمیں آنے والے سال کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے گزار سکتے ہیں. تو میرے ساتھ آپ پرانے عہد میں سے نکال سکتے ہیں حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت. حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 36واں باب اور 26ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. 26ویں سے 27ویں آیت. میں چاہتا ہوں اگر کوئی چھوٹی بیٹی یا بیٹا جو پڑھ سکتے ہیں وہ اگر پڑھنے میں رہنمائی کرے تو کوئی بیٹی یا بیٹا چھوٹا پڑھنے والا، جیسے یہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیٹی گیت گا رہی تھی، ہے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بچوں سے کام لینا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بھی کہا نا بچوں کو میرے پاس آ رہے تو تم کو سامنے لایا جائے. یسوع مسیح کے پاس وہ نکلا ہوا ادھر سے بائبل اس کی یہ میرے سے لگ اور میں تم کو نیا دن سب کہاں پہ رکھو میں تم کو نیا دن بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. کلیپنگ کرے تھی بچے کے لیے. اکثر جو ہے نا وہ بزرگ بھی شرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ بچی ہے وہ شرمائے نہیں ہے بلکہ وہ سامنے ہی ہے اور اس نے خدا کے کلام کی تلاوت کی. ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا تو میں اس لیے سامنے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھنا بھی جانتے ہیں اور ان کے اندر ہمت اور دلیری بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بول سکیں. تو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں 26ویں سے 27ویں آیت تک. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. خدا کے کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تو یہاں پر جو ہے ہم دو باتوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. باتیں تو تھی جو 5 جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے 3 باتیں جو ہیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ اگر ان 3 باتوں کو آج قبول کریں اور ان پر عمل کریں تو آنے والا سال 2024 اور جو باقی زندگی ہے وہ ہماری باعث برکت ہو سکتی ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اگر ہم 26ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لفظ ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. تو پہلی بات جو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے وہ ہے نیا دل. کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ نیا دل. اور اس کے بعد ہے نئی روح. ٹھیک ہے، تو نئے سال کے اندر ہم نے نیا دل لینا ہے اور نئی روح لینی ہے. یہ 2 باتیں اور ایک بات اور ہے اور وہ ہے نیا نام. کیا ہے؟ نیا نام. تو پہلی چیز ہے نیا دل. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ جس کے بارے میں ہم گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے. بادشاہ میں کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک نیا دل دینا چاہتا ہے. اگر آپ کسی
बड़े वजीर आजम से, सदर से, किसी मुल्क के बादशाह से मिले तो क्या वो आपको अपना दिल देगा? हाँ, बादशाह क्या कहते हैं? मांगो क्या चाहते हैं, मैं आधी सल्तनत दे दूंगा, मैं आपको हीरे जवाहरात दे दूंगा, दौलत और जमीन और दुनिया की हर चीज तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन कोई भी बादशाह अपना दिल आपको नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा फरमा रहा है कि मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा। नया दिल, तो ये नया दिल जो है, इसके बारे में हम जो वो देखेंगे कि इसकी किस कदर अहमियत है नए दिल की, और नया दिल पाकर जो है वो कैसे हम 2024 के अंदर खुदा की बरकत को पा सकते हैं और खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े और अजीब काम कर सकता है। तो जब मैं ये मैसेज के लिए जो है वो खुदा के सामने रखा हुआ था, तो मैं सर्च भी कुछ कर रहा था, तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हजारों ऐसे लोग हैं जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जिनका हार्ट जो है वो अब काम नहीं कर रहा सही तरीके से, ठीक है। और मैंने चेक किया कि अगर कोई अपना दिल बदलना चाहता है, अपना दिल नया लगवाना चाहता है, तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, अपना नया दिल लगवाना चाहता है ताकि वो जिंदा रह सके, तो उसके पास कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितने? 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर उसके पास 10 करोड़ रुपए होंगे तो ही उसको जो है वो नया दिल लग सकता है और वो कुछ देर, कुछ वक्त जो है वो जिंदा रह सकता है। और मैं देख रहा था कि अगर कोई अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लेता है तो ज्यादा से ज्यादा अभी तक वो सिर्फ 4 साल जी सकता है। 10 करोड़ रुपया लगाकर वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक जी सकता है। और एक शख्स था, उसने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया और वो 7 महीने जी सका और 7 महीने के बाद वो मार गया, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी। और जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो आपको पता है कि जिस्म को जो है वो क्या किया जाता है, जिस्म को जो है वो चीरा जाता है और फिर क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन खुदा जब हमें नया दिल देगा, लेकिन जब खुदा हमें नया दिल देगा तो उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर हॉस्पिटल आपको नया दिल देगा तो आपको करोड़ों रुपए दरकार होंगे और जिंदगी मिले या ना मिले इसका कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन जब खुदा आपको नया दिल देगा तो आपकी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप मुफ्त में खुदा से दिल पा सकते हैं। और ये जो मुफ्त में दिल आपको दिया जाएगा ना खुदा की तरफ से, ये आपको मुफ्त होगा, लेकिन ये मुफ्त है नहीं है। ये दिल मुफ्त है नहीं है। ये मुफ्त दिल जो है इसकी भी कीमत चुकाई गई है और वो कीमत चुकाई है आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर। इस दिल की कीमत चुकाई गई है और वो कीमत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर चुकाई है वो कीमत। ये दिल हमारे लिए मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तो खुदा चाहता है कि जब आप 2024 में दाखिल हो, नए साल में दाखिल हो, तो आप के अंदर जो है वो एक नया दिल हो, नए दिल के साथ, बदी और गुनाह से भरे हुए दिल के साथ नहीं, गुनाहगार दिल के साथ हम 2024 के अंदर दाखिल ना हो, बल्कि पाक दिल के साथ। हमारा खुदा पाकीज़गी का खुदा है, तो जरूर है कि हम पाक दिल के साथ 2024 के अंदर दाखिल हो। और जब डॉक्टर नया दिल डालता है तो वो जिस्म को चीरता है, लेकिन जब हमारा खुदा नया दिल लेता है, हमारा खुदा नया दिल लेता है, तो उसको जिस्म चीरने की भी जरूरत
नहीं है। हालेलुया। वो बगैर ऑपरेशन के हमें नया दिल दे देता है। और आपको पता है कि सबसे पहला जो दुनिया के अंदर ऑपरेशन हुआ था वो किसने किया था? खुदा ने किया था। कहां पर हुआ था, किसी को पता है? बाग एदम के अंदर हुआ था। जब आदम की पसली में से एक पसली खुदा ने क्या की, निकाली और उसे फिर उसके लिए एक औरत बनाई, नर और नारी बनाई। तो खुदा चाहता है कि 2024 में दाखिल होने से पहले हम अपने गुनाहगार दिल को, अपने नापाक दिल को, बदी और गुनाह से भरे हुए दिल को 2023 में ही छोड़ दें और जब 2024 में दाखिल हो तो नए दिल के साथ दाखिल हो। और ये नया दिल जो है वो खुदा यीशु मसीह हाथों में लिए हुए खड़ा है और वो यह दिल आपको देना चाहता है। जब आप 2024 में दाखिल होने के लिए 2024 के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वहां पर यीशु मसीह खड़ा हुआ है, अपना दिल लिए हुए, नया दिल लिए हुए, और खुदा यीशु मसीह वो दिल आपके आगे किए हुए। और ये अब आप पर है कि क्या आप उस दिल को पाना चाहते हैं या नहीं, क्या आप उस दिल को लेना चाहते हैं, या 2024 में भी उसी पुराने बदी और गुनाह और लालच से भरे हुए दिल को के साथ 2024 में भी दाखिल होना चाहते हैं। ये आपकी और ये मेरी मर्जी है, हम क्या चाहते हैं। क्या हम नया दिल पाकर खुदा की हुजूरी में जाना चाहते हैं, या वही पुराने दिल के साथ अगले साल में और बाकी सारी जिंदगी में भी वक्त गुजारना चाहते हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो पहली बात जो है वो हमने खुदा के कलाम में से देखी है नए दिल के बारे में। और जो ये नया दिल होगा इसके अंदर मोहब्बत होगी दूसरों के लिए, इस दिल के लिए के अंदर हमदर्दी होगी दूसरों के लिए, इस दिल के अंदर रहम होगा दूसरों के लिए। जबकि जो पुराना दिल है उसके अंदर बेरहमी होगी, उसके अंदर लालच होगा, उसके अंदर जो है वो दूसरों के लिए फिक्रमंदी नहीं बल्कि अपने लिए क्या होगी, फिक्रमंदी होगी। तो फिर अब हम खुद फैसला कर लें, जैसे हम गीत भी गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी। तो फिर अभी हम फैसला कर लें कि हमें कौन सा दिल चाहिए, पुराना या नया। कौन कौन है जिसने नए कपड़े पहने थे क्रिसमस पे? नहीं, सभी नहीं पहनते हैं, मैंने तो नहीं पहने, मैंने तो पुरानी। ठीक है, तो चाहते तो हम ये हैं कि हमें नए कपड़े मिले, तो फिर क्यों ना हम नया दिल भी लें। जब हम 2024 में दाखिल होने वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए साल पर भी नए जो है वो नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हम लोग 2024 के अंदर नए कपड़े नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, हम इससे बड़ी चीज लेकर 2024 में जा सकते हैं और वो है नया दिल। तो जरूर अगर आप नए कपड़े पहन सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन नया दिल तो ले सकते हैं ना। नए कपड़े लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन नए दिल के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उस दिल को लेने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बता दिया कि यीशु मसीह खड़े हुए हैं वो दिल, नया दिल लेकर। सिर्फ आपने आगे बढ़ना है और उस दिल को ले लेना है। ठीक है, तो जो दूसरी बात है खुदा के कलाम मुकद्दस में से वो हम देखेंगे, एक नई रूह, एक नया दिल के बारे में हमने जान लिया। और अब दूसरी बात है एक नई रूह। तो खुदा जो है इस आयत के अंदर, इस हवाला के अंदर जो है वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें एक नई रूह तुम्हारे बातों में क्या करूंगा, डालूंगा, तुम्हारे अंदर एक नई रूह डालूंगा। ठीक है, और ये रूह जो है ये कोई तैयार की हुई रूह नहीं है, ये खलक की हुई रूह नहीं है, बल्कि ये खुदा की रूह है जो वो हमें लेना चाहता है। हालेलुया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम तैयार करके किसी को दे दें। ये खलक की हुई रूह नहीं है, बल्कि ये खाली की रूह है, खुदा का रूह कुदस है, जो खुदा यहाँ पर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक नई रूह डालूंगा, मैं तुम्हारे बातों में एक नई रूह डालूंगा। और ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है कि कोई अपनी चीज किसी को दे, ये छोटी बात नहीं है। और अगर हमसे कोई चीज मांगे ना कभी, तो अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं मैं क्यों दूं, ये तो क्या है, ये मेरी चीज है, मैं अपनी चीज नहीं दूंगा। और अक्सर बड़े भी ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर हमें नजर आ रहा है कि खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नई रूह दूंगा, मैं तुम्हारे बातों में एक नई रूह
डालूंगा। तो इस नए साल के अंदर जो है जरूर हम जो है वो नए दिल और नई रूह के साथ दाखिल हों, और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, हमारे लिए नई बेहतरीन मौका है। और मैं पढ़ रहा था, एक शख्स कह रहा था कि जब नया साल शुरू होता है तो हर शख्स का नया जन्म होता है। 1 जनवरी को पूरी दुनिया का जो है वो जन्म होता है, उनकी सालगिरह होती है। क्यों? क्योंकि वो एक नए साल में क्या हो गए हैं, दाखिल हो गए, तो उनकी नई सालगिरह है। और वो मुझे बात है वो बहुत अच्छी लगी। तो जब हम 2024 में दाखिल हो तो फिर हम एक बच्चे की तरह एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, और हमारे अंदर नया दिल हो और नई रूह हो, और नए दिल और नई रूह के साथ हम नए साल के अंदर एक नए सफर का आगाज करें, और उस सफर में हमारा खुदावंद क्या हो, हमारे साथ हो। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि 2024 के अंदर खुदा उसके साथ हो? ठीक है, तो फिर जरूर आपको नया दिल और नई रूह की जरूरत है, ताकि खुदा 2024 में भी क्या करे, आपके साथ हो, और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आपकी रहनुमाई कर सके। तो जब नई रूह हमारे अंदर नहीं होती तो कैसे पहचान, आप कैसे पता लगेगा हमें कि क्या हमारे अंदर नई रूह है या नहीं है? हमें कैसे पता लगेगा? लग सकता पता? पारी साहब, गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस है तो वो निकाल सकता है। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को पता चलेगा, आपको भी और मुझे भी, ये नहीं कि आप लोगों के, मुझे भी पता चलेगा। तो गौर से सुनना आप लोगों ने, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके अंदर और मेरे अंदर नया दिल है, नई रूह है या नहीं है। अभी हमें पता चल जाएगा। कलाम मुकद्दस में से 19वीं से आपने 21वीं आयत तक पढ़ना है। गौर से सुनना सब। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 19वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ। जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो ये अभी आप लोगों ने कुछ चीजों को देख लिया, जान लिया है कि अगर ये चीजें आपके अंदर या मेरे अंदर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर नई रूह नहीं है। हमारे अंदर नई रूह, बोलेंगे मेरे साथ प्लीज, हमारे अंदर नई रूह नहीं है। तो अगर हमारे अंदर हरामकारी है, हमारे अंदर नापाकी है, हमारे अंदर शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है। अच्छा, बुत परस्ती तो लोग कहेंगे हम तो बुतों की पूजा नहीं करते, हम तो हिंदुओं की तरह नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता है कि शैतान जो है ना वो बड़ा शैतान है। अब उसने जो है वो ना वो नए बुत बनाए। उनको पता है कि अब इन्होंने कलाम में पढ़ लिया है कि जो है बुतों की तराशी मूर्त नहीं बनानी, तो उसने और बुत जो है ना वो तराशनी है। एक जो है वो पास्टर साहब के हाथ में भी है, ये दिखाइए जरा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसको भी अपना बुत बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने टीवी को भी अपना बुत बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुत है, बुत बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने अपने बीवी बच्चों को अपना बुत बनाया हुआ है। कैसे? कि जब हम खुदा से बढ़कर किसी और चीज को अपनी जिंदगी के अंदर दर्जा देते हैं, शुक्रिया, तो फिर वो जो है वो हमारे लिए बुत बन गया। बुत क्या है? खुदा ने क्यों बुतों की इबादत करने से मना किया था? कि लोगों ने खुदा को छोड़कर बुतों को अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देना शुरू कर दिया था। बुतों को वो ज्यादा चाहते थे, वो बुतों के आगे झुकना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही जब हम खुदा से बढ़कर किसी और चीज को अपनी जिंदगी के अंदर
اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے, وہ بت ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور ہم اپنے خود بھی اپنے آپ کے لیے بھی ہم بت ہے, ہم اپنے آپ کے لیے بھی بت ہے. اور آج گھر میں جو ہے وہ فیملی ممبر کچھ کہہ رہے تھے کہ سردی بہت ہے, تو جو ہے وہ دل ہی نہیں کر رہا چل جانے کو, نکلا نہیں جا رہا. پاسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ جلدی نکلتے نہیں, سردی بہت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کام پر جانے کے لیے تو جو ہے وہ ہم بستر سے نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کام ہمارا ہوتا ہے, کام کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن چرچ کو عبادت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر کام ہمارا ہوتا ہے. کام کو اگر ہم اہمیت دیتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں خدا کے کلام کو, خدا کی حضوری میں جھکنے کو بھی اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہیں, اگر ہم ناچ رنگ پسند کرنے والے ہیں, اگر ہم ناپاکی میں زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاری میں زندگی گزار رہے ہیں, شہوت پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں, لالچ کے اندر 2023 کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے اندر نئی روح نہیں ہے, ہمارے اندر نئی روح نہیں ہے. تو پھر نئی روح کو ہم نے اپنے اندر بسانا ہے. 2024 میں جب ہم نے داخل ہونا ہے تو ہمارے اندر نئی روح ہو. تو پھر نئی روح جب ہمارے اندر ہوگی تو اس کا کیسے پتا چلے گا؟ وہ آگے لکھا ہوا ہے, وہ آگے لکھا ہوا ہے. پاری صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. 22ویں آیت سے نکلی ہوئی ہے, میں نے کہا پھر میں پڑھتا ہوں. چلے میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو گلتیوں 5 اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب نئی روح ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہمارے اندر کیا ہوگا. جب پرانی روح ہمارے اندر ہوگی تب آپ نے جان لیا کہ کیا ہوگا ہمارے اندر. جب نئی روح ہوگی ہمارے اندر تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ اس شخص کے اندر, اس بھائی کے اندر, اس بہن کے اندر, اس خادم کے اندر, اس خادم کے اندر نئی روح ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ 22ویں اور 23ویں آیت. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے بس برکت ٹھہرے. تو یہاں پر ابھی آپ نے روح کا پھل جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیا ہے. جب نئی روح ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہمارے اندر محبت ہوگی. کیا ہوگی جی؟ اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس آیت کو میرے پیچھے پڑھیں. کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہاتھ نیچے کیے چاہے نہ پڑھے. تو میرے ساتھ پڑھیے گا. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. تو اگر 2024 کے اندر آپ کے اندر محبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نئی روح ہے. اگر 2024 کے اندر آپ کے اندر اطمینان ہوگا, آپ کے اندر تحمل ہوگا, آپ کے اندر مہربانی ہوگی, آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں گے, آپ ایماندار ہوں گے, ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نئی روح ہے. اور وہی روح جس کا وعدہ خدا نے حزقیل نبی کے صحیفہ کے 36ویں باب اور اس کی 26ویں آیت میں کیا ہے کہ میں تمہارے اندر ایک نیا دل ڈالوں گا اور میں تمہارے باطن میں ایک نئی روح ڈالوں گا. تو پھر ضرور ہے کہ اب جب نئے سال میں ہم داخل ہونے والے ہیں آج رات 12 بجے کے بعد, تو ہم خدا کے سامنے جھکیں اور خدا کے سامنے اقرار کریں کہ خدا میرے اندر جو دل ہے وہ پاک دل نہیں ہے, میرے اندر جو دل ہے وہ ایک نئی روح نہیں ہے بلکہ وہ پرانی روح ہے جس کے اندر بدی بھری ہوئی ہے, جس کے اندر گناہ ہے, جس کے اندر لالچ ہے, جس کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے. میں اس دل کے ساتھ, میں اس روح کے ساتھ نئے سال میں نہیں جانا چاہتا. تو مجھے نیا دل عطا کر, تو مجھے نئی روح عطا کر. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایمان سے دعا کریں گے, دل سے دعا کریں گے, تو خدا ہماری دعا کو سنے گا اور 2024 کے اندر ہم نئے دل اور نئی روح کے ساتھ خدا کی حضوری میں شامل ہوں گے اور خدا ہمیں اپنی برکتوں بخشش سے نوازے گا. ٹھیک ہے, تو 2 باتیں ہم نے دیکھ لی. اب تیسری اور آخری بات, ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے نیا نام. یہ کیا ہے؟
नया नाम। तो जब हम 2024 में दाखिल हो तो फिर एक नए नाम के साथ दाखिल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं 2024 में जाऊं तो मेरा नाम डेविड ना हो, मैं अपना नाम जो है कोई और रखूं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक नया नाम। तो इसके लिए भी जो है वो हम एक हवाला पढ़ते हैं, मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले की सिवा कोई ना जानेगा। खुदा कलाम पढ़ा जाना हमारे लिए बासर बरकत हो। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो हमें एक नया नाम देना चाहता है। और अब जब हम पुराने नामों पर निगाह करें तो वहां पर जो है हमें मिलता है कि खुदा ने बहुत से लोगों को नए नाम दिए। अगर कोई बता सके, पुराने नामों में खुदा ने कुछ लोगों को नए नाम दिए थे। साउल का पलूस, नए नाम। वेरी गुड, भाई के लिए क्लैपिंग बजाय उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। नए नाम पुराने नाम में याकूब को इसराइल नाम दिया, खुदा ने एक नया नाम दिया। और जो ईमानदारों का बाप जिसको कहा जाता है, कौन है वो? इब्राहिम। इब्राहिम का पहले नाम क्या था? इब्राहिम। ठीक है, और सारी का नाम से फिर क्या रखा गया? सारा रखा गया। और फिर शमौन का नाम क्या रखा गया? पतरस रखा गया। तो खुदा क्या करता है? नया नाम देता है। और खुदा चाहता है कि जब हम 2024 में दाखिल हो तो हमारा पुराना नाम जो है वो ना हो, बल्कि एक नए नाम के साथ हम 2024 के अंदर दाखिल हों। तो जरूर आप इस बात पर भी गौर करें और इस बात के लिए दुआ भी करें कि ना सिर्फ नए दिल, नई रूह, बल्कि मैं नए नाम के साथ 2024 के अंदर दाखिल होऊंगा और फिर उसी नए नाम के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बसर करूंगा। और नया नाम जो होगा वो हमारी पहचान बने। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो इज्जत अफजाई मुझे दी गई, ये पहले मुझे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा पुराना नाम था, उस वक्त मेरा नाम था डेविड। अब मेरा नया नाम है और अब मेरा नाम है पास्टर डेविड। ऐसी है सर जी, हालेलुया। अब मुझे नया नाम मिल गया, पहले नाम था डेविड, अब है पास्टर डेविड। तो अब खुदा ने जब मुझे नया नाम दिया तो मुझे फिर इज्जत भी मिली, मुझे जो है वो बरकत भी मिली। तो जब आप भी 2024 के अंदर नया नाम के साथ दाखिल होंगे तो फिर आप भी इज्जत पाएंगे, फिर आप भी बरकत पाएंगे, फिर आप भी तरक्की और कामयाबी पाएंगे। अब ये ना समझ लीजिएगा कि इसी सारे ने पास्टर ही बनना है, उन्होंने कहा था पास्टर बन जाना है। नहीं, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा के साथ चलने वाले बन जाते हैं तो हम इज्जत पाते हैं। जैसे भाई तबले वाले कहाँ गए? चले नीचे गए हैं। ठीक है, तो क्या वो पास्टर है? लेकिन उनको इज्जत मिली। जो भाई यहाँ पर प्रशिश करते हैं उनको भी इज्जत, उनके लिए भी क्लैपिंग की। तो हम किसी तौर से भी जो है जब खुदा की खिदमत करते हैं तो हम इज्जत पाते हैं और ये हमें नया नाम मिल जाता है। ये भाई जो थे ये शुरू से नहीं तबला बजा रहे थे, है? तो फिर उनके लिए क्लैपिंग भी शुरू में होती होगी ना। जब अब वो खिदमत में आए हैं तो अब उनको इज्जत भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब उनको एक नया नाम मिल गया, अब उनको नई खिदमत मिल गई है। तो 2024 के अंदर हम नए दिल के साथ, नई रूह के साथ और नए नाम के साथ जाएं ताकि हम भी इज्जत पाएं, ताकि हम भी बरकत पाएं, ताकि हम भी तरक्की पाएं, कामयाबी पाएं और हमारी जिंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो जरूर जो है हम नए नाम के साथ खुदा की हजूरी में 2024 में दाखिल हो। और अब ये जो पुराना नाम है वो क्या हमारा नाम है? वो है गुनाहगार, वो है बदी के अंदर पड़ा हुआ, ये हमारा पुराना नाम है। वो है गैर नजात याफ्ता। लेकिन जब हम नया नाम पाएंगे तो फिर हम गैर नजात याफ्ता नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम नजात याफ्ता हो जाएंगे। जब हम नए नाम के साथ दाखिल होंगे तो फिर हम जहन्नुम के वारिस नहीं होंगे, फिर हम अपनी जिंदगी के वारिस हो जाएंगे।
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ضرور ہم جو ہے نئے سال کے اندر نئی زندگی میں جب داخل ہوں تو نئے نام کے ساتھ ہوں تاکہ لوگ ہمیں گنہگار کے طور پر نہ پہچانے, لالچی کے طور پر نہ پہچانے, ہمیں دھوکہ دینے والے کے نام طور پر نہ پہچانے, ہمیں تولنے میں جو گڑبڑ کرنے والے ہیں اس کے طور پر نہ جانے, بلکہ لوگ ہمیں ایماندار کے طور پر جانے, لوگ ہمیں خدا کے خادم کے طور پر جانے, ہمیں لوگ خدا کی بندی کے طور پر جانے, ہمیں لوگ دعا گو کے طور پر جانے, ہمیں لوگ دعا کرنے والے کے طور پر جانے, پرستش کرنے والے کے طور پر جانے. جیسے ان بھائی کا مجھے نام تو نہیں پتا, لیکن اگر کبھی میں ان کو یونا باغ میں دیکھوں گا تو کیسے پہچانوں ان کو کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے کیا بجایا تھا, تبلا بہت اچھا بجایا تھا. اس طور سے دلدار بھائی, ٹھیک ہے, تو اس طور سے لوگ جو ہے وہ ہمیں پہچانے نئے نام کے ذریعے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں